Chapter 13. Understanding Media. Media and Democracy. Understanding Media. Media is the plural form of the word medium. In general terms, media refers to various means of communication like radio, television, newspapers, magazines and cinema. Now, Internet is also increasingly accepted as a form of media. They are the communication channels through which news, entertainment, education, data or promotional messages are disseminated. Therefore, their powers of manipulating people are the subject of much discussion. मीडिया शब्द मीडियम का बहुवचन रूप है। सामान्य तौर पर मीडिया से मतलब है विभिन्न संचार के साधन जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं, मैगजीन्स और सिनेमा। अब इंटरनेट को भी मीडिया के एक रूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सभी संचार चैनल हैं जिनके माध्यम से समाचार, न्यूज़, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, शिक्षा, एजुकेशन, डेटा या प्रचार संदेश, प्रमोशनल मैसेजेस फैलाए जाते हैं। इसलिए इनकी शक्ति जो लोगों को प्रभावित करने में हो सकती है, पर बहुत चर्चा की जाती है। Communication is defined as the passing of ideas, information, and attitudes from person to person. Technological inventions such as telegraph, telephone, gramophone, wireless, television, radio, computer chip, internet, mobile camera phones and the use of satellites brought about revolution in communications. All these developments have taken place during a period which has seen vast economic and political changes. Along with the mass production of goods, the active participation of the people in the politics of their countries began to transform the face of democracy. संचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: विचारों, जानकारी और दृष्टिकोणों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। कई तकनीकी आविष्कारों जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, ग्रामोफोन, वायरलेस, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर चिप, इंटरनेट, मोबाइल कैमरा फोन्स और उपग्रहों, सैटेलाइट्स का उपयोग ने संचार में एक क्रांति, रेवोल्यूशन ला दी। इन सभी विकासों ने उस समय के दौरान बदलाव किए जब आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे। साथ ही जब सामानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, तो लोगों की अपने देशों की राजनीति में सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ने लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का चेहरा बदल दिया। इसका मतलब है कि इन तकनीकी बदलावों ने न केवल हमारी जीवन शैली को बदल दिया, बल्कि लोकतंत्र के कार्य करने के तरीके को भी प्रभावित किया। Mass media plays a significant role in shaping the working of a democracy. These means of mass communication include newspapers, films, radio and television. Of these, the newspaper is the oldest medium, having come into being in some countries not long after the invention of printing. Rest are new and are products of modern technology. Today, online newspapers are almost as popular as printed ones. Today's newspaper uses vast array of technological tools, both in terms of news or information gathering, transmission as well as printing. Mass media लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन संचार के माध्यमों में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स,
रेडियो और टेलीविजन शामिल हैं। इनमें से समाचार पत्र सबसे पुराना माध्यम है, जो कुछ देशों में मुद्रण प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद जल्दी ही अस्तित्व में आया। बाकी सभी माध्यम नए हैं और आधुनिक तकनीकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परिणाम है। आजकल ऑनलाइन समाचार पत्र, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, प्रिंटेड समाचार पत्रों के जितने ही लोकप्रिय हो गए हैं। आज के समाचार पत्र अपने समाचार या जानकारी एकत्र करने, प्रसारण, ट्रांसमिशन और मुद्रण प्रिंटिंग के लिए कई तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि आज के समाचार पत्र और मीडिया एक नई तकनीकी दुनिया से जुड़े हुए हैं और अधिक प्रभावी तरीके से सूचना फैलाते हैं। The new communications and mass media have had a deep impact on the society in every part of the world. They have created new types of consumerism, new occupations, new art forms, and new ways of influencing and even controlling people. The mass audience, the recipients of information that they have created, is an entirely new phenomenon in human history. The mass media are equally forms of mass entertainment. नई संचार तकनीक और मास मीडिया ने दुनिया के हर हिस्से में समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इन्होंने नई तरह की उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, नए व्यवसायों, ऑक्यूपेशंस, नई कला शैलियों, आर्ट फॉर्म्स और लोगों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के नए तरीके बनाए हैं। मास ऑडियंस यानी सूचना प्राप्त करने वाले लोग, जिनका निर्माण मास मीडिया ने किया है, मानव इतिहास में एक पूरी तरह नया घटना है। These developments have brought the world closer in terms of ideas, information and attitudes. This is similar to the process by which developments in transport shrank and brought the peoples of the world closer. The mass media have also created problems for which solutions have to be found. मास मीडिया सिर्फ सूचना देने के साधन नहीं है, बल्कि ये मास एंटरटेनमेंट का भी रूप है। इन विकासों ने दुनिया को विचारों, आइडियाज, जानकारी, इंफॉर्मेशन और दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स के हिसाब से करीब ला दिया है। यह ठीक उसी तरह है जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट के विकास ने लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। हालांकि मास मीडिया ने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न की हैं, जिनके समाधान, सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। The following agencies help in formulating public opinion. आज के दौर में लोग दो मुख्य स्रोतों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया। In today's world, people come to know of the events and happenings across the globe through two sources, the print media and the electronic media. The press, through the newspapers, magazines and journals, print the major news items that occur all over the world in the last 24 hours or more. The press has always played an important role in formulating public opinions. Newspaper reports help in shaping public opinion. People may form differing perceptions based on correct reporting. Correct reporting is again dependent on the freedom of the press. Sometimes, the press may treat news subjectively. Electronic media के माध्यम से दुनिया भर की घटनाओं और घटनाक्रमों के बारे में जानते हैं। प्रेस, जो समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाओं, मैगजीन्स और जर्नल्स के माध्यम से प्रमुख समाचारों को प्रकाशित करती है, पूरे दुनिया में पिछले 24 घंटों या उससे अधिक के प्रमुख समाचारों को प्रकाशित करती है। प्रेस ने हमेशा जनमत, पब्लिक ओपिनियन,
बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जनमत को आकार देने में मदद करती हैं। लोग सही रिपोर्टिंग के आधार पर विभिन्न धारणा बना सकते हैं। सही रिपोर्टिंग की गुणवत्ता प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, पर निर्भर करती है। कभी-कभी प्रेस समाचारों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पेश कर सकती है। In addition to newspapers, the role played by magazines is equally important in the formulation of public opinion. In a country like India, where regional languages are so important, magazines in regional languages play an important role in informing the people about the events and happenings in India and in the world. समाचार पत्रों के अलावा पत्रिकाओं का भी जनमत निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत जैसे देश में, जहां क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस, इतनी महत्वपूर्ण हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रिकाएं लोगों को भारत और दुनिया की घटनाओं और घटनाक्रमों के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Importance of radio, television, or cinema in the formulation of public opinion can never be exaggerated, especially in a country like India, where illiteracy rate is quite high. In fact, radio reaches more people than newspapers or magazines. For illiterates, radio or television is a boon. Radio can reach anyone who cares to listen. You will see people crowding around pawn shop or a tea stall or community center in a village or small town or even in big city, listening to the cricket commentary or news. रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा का जनमत निर्माण, पब्लिक ओपिनियन में महत्व कभी भी कम नहीं आंका जा सकता, खासकर भारत जैसे देश में, जहां निरक्षरता, इलिटरेसी की दर काफी अधिक है। दरअसल रेडियो अधिक लोगों तक पहुंचता है, तुलना में समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं, मैगजीन्स से। निरक्षर लोगों के लिए रेडियो और टेलीविजन एक वरदान, बून है। रेडियो किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो इसे सुनने में रुचि रखता है। आप देखेंगे कि लोग गांव या छोटे शहरों या यहाँ तक कि बड़े शहरों में एक पान की दुकान, पान शॉप या चाय की दुकान, टी स्टॉल या समुदाय केंद्र, कम्युनिटी सेंटर के आसपास इकट्ठा होते हैं और क्रिकेट की टिप्पणी, क्रिकेट कमेंट्री या समाचार, न्यूज़ सुनते हैं। You will often find that when important announcements like the election results are to be made, radio sets are placed in the village chowpal for the villagers to know the result. They not only listen to the results but react and give their opinions, which in turn help in the shaping the public opinion. आप अक्सर यह पाएंगे कि जब महत्वपूर्ण घोषणाएं, जैसे चुनाव के परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट्स किए जाते हैं, तो रेडियो सेट गांव की चौपाल में रखे जाते हैं, ताकि ग्रामीण लोग परिणाम जान सकें। वे न केवल परिणाम सुनते हैं, बल्कि प्रतिक्रिया, रिएक्शन देते हैं और अपनी राय, ओपिनियन व्यक्त करते हैं, जो जनमत को आकार, शेप देने में मदद करती है। Television is another media which not only gives the news of the country and the world, it also entertains people. People enjoy movies, serials, plays, cartoons and skits broadcast on television. There was time when people used to watch films in cinema halls. Now, television is an equally good and cheaper option. टेलीविजन भी एक ऐसा मीडिया है जो न केवल देश और दुनिया की खबरें देता है, बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करता है। लोग टेलीविजन पर फिल्में, धारावाहिक, सीरियल्स, नाटक, प्लेस, कार्टून्स और स्किट्स
स्किट्स देखना पसंद करते हैं। पहले लोग सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखते थे। अब टेलीविजन एक सस्ता और उतना ही अच्छा विकल्प बन चुका है। However, even today people go to cinema halls in large numbers. Cinemas often show common problems like untouchability, casteism, dowry, or subjects like poverty and gender bias. What one sees in cinema or in television serial leaves an impact on his/her mind and influences his/her thoughts and actions. It influences public opinion in either healthy or harmful way. The harmful effects have to be checked and measures have to be taken where the media can play a positive and constructive role. हालांकि आज भी लोग सिनेमा हॉल्स में बड़ी संख्या में जाते हैं। सिनेमा अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जातिवाद, कास्टिज्म, दहेज, डाउरी या गरीबी, पॉवर्टी और लिंग भेदभाव, जेंडर बायस जैसे विषयों को दिखाता है। जो कुछ भी हम सिनेमा या टेलीविजन धारावाहिकों, टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं, वह हमारे दिमाग पर असर डालता है और हमारे विचारों, थॉट्स और कार्यों, एक्शंस को प्रभावित करता है। यह जनमत पब्लिक ओपिनियन को या तो सकारात्मक, हेल्दी या नकारात्मक, हार्मफुल तरीके से प्रभावित करता है। नकारात्मक प्रभावों को रोका, चेक्ड जाना चाहिए और मीडिया को एक सकारात्मक और रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए कदम उठाने चाहिए। Besides these agencies, voluntary organizations, political parties etc. play an important role in forming the public opinion. इसके अलावा ये एजेंसीज के अलावा स्वैच्छिक संगठनों, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज आदि का भी जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। In democracy, the government and the governed have to be patient and tolerant. The government should pay keen attention to public opinion, but play a moderating and secular role. People must learn to tolerate differences. The press can give expression to the opinions of all sections of the society. In democracy, power is not the monopoly of any political party. Today's mass media has become a means of money-making. And most of the channels and newspapers are part of the big business houses. लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में सरकार, गवर्नमेंट और शासित, गवर्नड दोनों को धैर्य और सहनशीलता, टॉलरेंस रखना पड़ता है। सरकार को जनमत, पब्लिक ओपिनियन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे एक मध्यस्थ, मॉडरेटिंग और धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर भूमिका निभानी चाहिए। लोगों को भिन्नताओं, डिफरेंसेस को सहन करना सीखना चाहिए। प्रेस समाज के सभी वर्गों, सेक्शंस की राय, ओपिनियंस को व्यक्त, एक्सप्रेशन कर सकता है। लोकतंत्र में सत्ता, पावर किसी भी राजनीतिक पार्टी का एकाधिकार, मोनोपोली नहीं होती। आजकल का मास मीडिया एक पैसे कमाने, मनी मेकिंग का साधन बन गया है और अधिकांश चैनल्स और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स बड़े व्यापारिक घरानों, बिजनेस हाउसेस का हिस्सा बन चुके हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। Public opinion. Democracy seeks people's opinion on different issues. It derives its authority from the people. So, to a great extent, it depends on public opinion. In a representative democracy, a government cannot ignore people's reaction to its policies. लोकतंत्र
डेमोक्रेसी विभिन्न मुद्दों पर लोगों की राय, पीपल्स ओपिनियन प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह अपनी शक्ति, अथॉरिटी जनता से प्राप्त करता है, इसलिए यह बहुत हद तक जनमत, पब्लिक ओपिनियन पर निर्भर करता है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सरकार अपनी नीतियों, पॉलिसीज पर लोगों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। Strong public opinion plays a significant role in the formation of government. Public opinion helps in creating such a condition where the government cannot afford to misrule or neglect the country. An enlightened citizen cannot be taken for a ride by the government. The government also knows that ignoring the aspirations of public will soon make it unpopular, and there will be less chances of its returning to power. मजबूत जनमत, strong public opinion, सरकार के गठन, formation of government में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार देश को ठीक से चलाए और किसी भी प्रकार की अनदेखी या गलत शासन, मिसरूल को सहन नहीं किया जा सकता। एक जागरूक नागरिक, एनलाइटेंड सिटीजन, सरकार द्वारा आसानी से गुमराह, टेकन फॉर अ राइड नहीं किया जा सकता। सरकार भी जानती है कि अगर वह जनता की आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस को नजरअंदाज करती है तो जल्द ही वह अप्रचलित, अनपॉपुलर हो जाएगी और फिर उसे सत्ता में वापस आने के कम मौके मिलेंगे। Several groups have come forward with several means of communication for covering local issues which focus sharply the day-to-day events of local people in that locality. Many people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them about the use of seeds and fertilizers. Others make documentary films with fairly cheap and easily available video cameras on real-life conditions faced by different poor communities, while some filmmakers have highlighted the plight of marginalized social groups. कई समूह, groups, विभिन्न संचार के साधनों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से स्थानीय मुद्दों, लोकल इश्यूज को कवर करने के लिए सामने आए हैं, जो स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की घटनाओं, डे टू डे इवेंट्स को प्रमुखता से दिखाते हैं। कई लोग सामुदायिक रेडियो, कम्युनिटी रेडियो का उपयोग किसानों को विभिन्न फसलों के दाम, प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताने और बीज, सीड्स और उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स के उपयोग के बारे में सलाह देने के लिए करते हैं। कुछ लोग सस्ते और आसानी से उपलब्ध वीडियो कैमरास से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, जो विभिन्न गरीब समुदायों, पुअर कम्युनिटीज की वास्तविक स्थितियों, रियल लाइफ कंडीशंस को दिखाती हैं, जबकि कुछ फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर्स हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों, मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स की समस्याओं को उजागर, हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होली क्रॉस कम्युनिटी रेडियो वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 दिसंबर 2006 एज द न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ होली क्रॉस कॉलेज, त्रिची. It reached in and around 10 kilometers of the college. The target audience of this radio initiates were the women from Dharmanathpuram and Jiva Nagar areas, which are the major slum areas in Trichy. One of Holy Cross's favorite programs, Pudhya Jananam, was initiated on 19 June 2007. Pudhya Jananam, meaning new birth, buttresses community awareness through interactive programs on health, hygiene and other factors of daily importance. उदाहरण के तौर पर, होली क्रॉस कम्युनिटी रेडियो 26 दिसंबर 2006 को होली क्रॉस कॉलेज, त्रिची, होली क्रॉस कॉलेज, त्रिची
की एक नई पहल इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया गया था। यह कॉलेज के आसपास लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पहुंचा। इस रेडियो की लक्षित श्रेणी टारगेट ऑडियंस त्रिची के धर्मनाथपुरम और जीवनगर धर्मनाथपुरान एंड जीवानगर क्षेत्रों की महिलाएं थी, जो त्रिची के प्रमुख झुग्गी बस्तियों स्लम एरियाज में से हैं। हॉली क्रॉस का एक प्रसिद्ध कार्यक्रम पुझ्या जननम, जिसका अर्थ है नया जन्म, 19 जून 2007 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य रोजमर्रा की महत्वपूर्ण बातों पर इंटरैक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता कम्युनिटी अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। Setting agendas. Through media we come to know about the working of the government. The print media gives information to citizens in free society, as is typical of a true democracy. The media decides what is of great importance and thus sets the agenda of news such as social, political, economic, cultural, etc. मीडिया के माध्यम से हम सरकार के कार्यों वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में जान पाते हैं। प्रिंट मीडिया एक स्वतंत्र समाज फ्री सोसाइटी में नागरिकों सिटीजन्स को जानकारी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जो एक सच्चे लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी की विशेषता है। मीडिया यह तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और इस प्रकार समाचार न्यूज़ का एजेंडा निर्धारित करता है, जैसे सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सांस्कृतिक, कल्चरल आदि मुद्दे। The government can, at times, prevent the media from publishing any news. This is called censorship. However, it is important for us to carefully assess the truth of any piece of information that a news report provides us, because information may be incomplete, biased or one-sided. सरकार कभी-कभी मीडिया को किसी समाचार को प्रकाशित करने से रोक सकती है, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी जानकारी इंफॉर्मेशन को सावधानीपूर्वक मूल्यांकित असेस करें जो एक समाचार रिपोर्ट हमें प्रदान करती है, क्योंकि जानकारी कभी-कभी अधूरी इनकम्प्लीट पक्षपाती बियास्ड या एक तरफा वन साइडेड हो सकती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज सीन सोशल चर्निंग and thus social movements have concentrated on environmental issues, forest rights, farmers' rights, treatment of Dalits, language concerns, division of states along linguistic lines, creation of new states out of existing ones to suit popular aspirations. Tribal movements have been instrumental in the formation of at least 2 new states of Jharkhand and Chhattisgarh, water issues, etc. The media has played a vital role in highlighting these movements. स्वतंत्रता के बाद भारत में एक सामाजिक हलचल सोशल चर्निंग देखी गई और इस प्रकार सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट्स पर्यावरणीय मुद्दों एनवायरमेंटल इश्यूज वन अधिकारों फॉरेस्ट राइट्स किसानों के अधिकारों फार्मर्स राइट्स दलित्स के अधिकारों भाषा संबंधी मुद्दों लैंग्वेज कंसर्न्स राज्यों का विभाजन डिविजन ऑफ स्टेट्स जनहित के आधार पर नए राज्यों का निर्माण क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स जैसे मुद्दों पर केंद्रित हुए। उदाहरण के तौर पर आदिवासी आंदोलनों ने झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया ने इन आंदोलनों को उजागर करने हाईलाइट में अहम भूमिका निभाई है।
Of more recent importance have been the struggles for the right to information, the right to employment, movements against child labor and consumer protection. In recent times, we have seen the news of people protesting against the judgments of the lower courts. The public perception was that rules and regulations are made only for the poor, and rich and powerful can get away with little or no punishment. These mass movements resulted in judicial intervention. हाल के समय में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और उपभोक्ता सुरक्षा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आंदोलन, मूवमेंट्स महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल ही में हमने यह समाचार देखा है कि लोग निचली अदालतों, लोअर कोर्ट्स के फैसलों, जजमेंट्स के खिलाफ विरोध, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सार्वजनिक धारणाओं, पब्लिक परसेप्शन के अनुसार नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस केवल गरीबों, पुअर के लिए बनाए जाते हैं, जबकि अमीर और शक्तिशाली लोग, रिच एंड पावरफुल, बिना सजा के बच जाते हैं। इन बड़े आंदोलनों, मास मूवमेंट्स ने न्यायिक हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशन को जन्म दिया। Of particular importance was the movement launched by MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, and Parivartan to get the right to information implemented in India. Parivartan, founded by Arvind Kejriwal, is Delhi-based citizens' movement trying to ensure a just, transparent and accountable governance. This movement stressed on the accountability of the governing bodies. The Act applies to all states and union territories of India except Jammu Kashmir. विशेष रूप से महत्वपूर्ण आंदोलन था MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और परिवर्तन का आंदोलन, जिसने भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, लागू करने, इम्प्लीमेंटेड के लिए प्रयास किए। परिवर्तन, जिसे अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया था, दिल्ली का एक नागरिक आंदोलन, सिटीजन्स मूवमेंट है, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार, अकाउंटेबल सरकार सुनिश्चित करना है। इस आंदोलन ने सरकारी संस्थाओं, गवर्निंग बॉडीज की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पर स्ट्रेस दिया। यह कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटोरीज पर लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन। द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI Act 2005 is meant to empower the public to seek performance-related information from the government and to collect data to help them prove the administration's incompetence, cupidity or apathy. The movement has been gradually gathering momentum in different parts of the country. सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 का उद्देश्य जनता, पब्लिक को सरकार से प्रदर्शन, परफॉर्मेंस रिलेटेड से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना है, ताकि वे प्रशासन की अक्षमता, इनकम्पिटेंस, लालच, क्यूपिडिटी या उपेक्षा, एपैथी को साबित करने के लिए डेटा एकत्र कर सकें। यह आंदोलन, मूवमेंट, देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे बल पकड़ रहा है, गैदरिंग मोमेंटम। Power without accountability is always sweeter than power with responsibility for the individual enjoying it. But it is disaster for any democratic system. The RTI movement is not for or against particular individuals. It simply aims at making the system more efficient. The Act has already chalked up an impressive record of successful outcomes,
where justice has been meted out to offenders. Moreover, exemplary punishments have been awarded to officials who failed to furnish the information asked for within the stipulated time. The need for accountability has thus been reinforced as never before, and may be construed as a milestone on the path to more effective democracy. गैर जवाबदेही के साथ शक्ति, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, हमेशा अधिक आकर्षक होती है, लेकिन यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम, के लिए विनाशकारी, डिजास्टर है। आरटीआई आंदोलन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रणाली, सिस्टम को अधिक प्रभावी, एफिशिएंट बनाना है। इस अधिनियम, एक्ट, ने पहले ही कई सफल परिणाम, सक्सेसफुल आउटकम्स, हासिल किए हैं, जहां दोषियों, ऑफेंडर्स को न्याय, जस्टिस दिया गया। इसके अलावा उन अधिकारियों, ऑफिशियल्स को उदाहरणात्मक दंड, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दिए गए हैं, जिन्होंने निर्धारित समय, स्टिपुलेटेड टाइम, के भीतर मांगी गई जानकारी नहीं प्रदान की। इस प्रकार जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता को पहले से कहीं अधिक बल, रीइंफोर्स्ड, दिया गया है और इसे एक प्रभावी लोकतंत्र, इफेक्टिव डेमोक्रेसी की ओर एक मील का पत्थर, माइलस्टोन, माना जा सकता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 has proved to be boon across communities, professions and issues in bringing to light host of social ills or bureaucratic lapses, while also exposing several unhealthy practices in governance. Its activities typically include support for the inclusion of media in law school syllabi, and even activation of laws lying dormant in the statute books, etc. These all will go a long way towards creating a healthy media governance interface and better deal for the common man. सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005 समुदायों, कम्युनिटीज, पेशों, प्रोफेशंस और विभिन्न मुद्दों, इश्यूज के लिए एक वरदान, बून साबित हुआ है, क्योंकि इसने कई सामाजिक बुराइयों, सोशल इल्स और नौकरशाही की गड़बड़ियों, ब्यूरोक्रेटिक लैप्सेस को उजागर, एक्सपोज किया है। साथ ही शासन, गवर्नेंस में कई अस्वस्थ प्रथाओं, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को भी सामने लाया है। इसके क्रियाकलापों, एक्टिविटीज में आमतौर पर कानून विद्यालयों, लॉ स्कूल्स के पाठ्यक्रमों, सिलेबी में मीडिया को शामिल करने, इंक्लूजन का समर्थन, सपोर्ट करना और उन कानूनों, लॉज को सक्रिय, एक्टिवेशन करना जो लंबे समय से किताबों, स्टैट्यूट बुक्स में निष्क्रिय पड़े थे, आदि शामिल हैं। यह सब एक स्वस्थ मीडिया शासन, मीडिया गवर्नेंस इंटरफेस बनाने में मदद करेगा और आम आदमी, कॉमन मैन के लिए बेहतर सुविधाएं, बेटर डील प्रदान करेगा। Effective protections against restrictive legislation may be self-regulation and media accountability. A government cannot challenge press freedom when the reporters and editors of the mass media perform at a professional level, verify facts, and adopt a balanced approach in presenting the news. Therefore, training and media law reform may go hand in hand. संज्ञात्मक और मीडिया की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा, इफेक्टिव प्रोटेक्शंस, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन और मीडिया की जवाबदेही, मीडिया अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। एक सरकार तब प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम को चुनौती नहीं दे सकती जब मास मीडिया के रिपोर्टर्स और संपादक, एडिटर्स, पेशेवर, प्रोफेशनल स्तर पर काम करते हैं, तथ्यों, फैक्ट्स की पुष्टि, वेरीफाई करते हैं और समाचार,
न्यूज़ प्रस्तुत करने में संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और मीडिया कानून सुधार, मीडिया लॉ रिफॉर्म को साथ साथ चलाना महत्वपूर्ण हो सकता है। It is necessary to highlight 4 principal themes essential to the understanding of media in democracy. लोकतंत्र में मीडिया को समझने के लिए 4 प्रमुख बिंदुओं, प्रिंसिपल थीम्स, को उजागर करना आवश्यक है। Need for anti-defamation law, notably as regards when and how the mass media can be held responsible and punished for controversial, embarrassing, or inaccurate information about public officials, public figures, or private individuals. नुकसानदेह एंटी डिफेमेशन कानून की आवश्यकता। यह कानून महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब बात आती है कि कब और कैसे मास मीडिया को सार्वजनिक अधिकारियों, पब्लिक ऑफिशियल्स, सार्वजनिक व्यक्तित्व, पब्लिक फिगर्स या व्यक्तिगत व्यक्तियों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बारे में विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, शर्मनाक, एम्बैरेसिंग या गलत, इनएक्यूरेट जानकारी के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है और दंडित, पनिश्ड किया जा सकता है। Issues related to mass media and national security, particularly the government's ability to censor or to restrict access to information. मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे। यह मुद्दा खास तौर पर सरकार की क्षमता, गवर्नमेंट्स एबिलिटी से संबंधित है, जिसमें वह मीडिया को सेंसर करने या जानकारी, इंफॉर्मेशन तक पहुंच को प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। यह सवाल उठता है कि मीडिया को किस हद तक नियंत्रण, कंट्रोल और सेंसर किया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। प्रोटेक्शन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ न्यूज, गवर्नमेंट ओनरशिप, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ दी मास मीडिया। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 caters to the need for the explicit, enforceable right of journalists and citizens to gain access to government and corporate information. It undertakes activities to encourage greater accountability, public awareness and involvement, and the rule of law. सूचना का अधिकार, RTI अधिनियम 2005 पत्रकारों, जर्नलिस्ट्स और नागरिकों, सिटीजन्स को सरकार, गवर्नमेंट और कंपनियों, कॉरपोरेट की जानकारी तक पहुंचने का स्पष्ट और लागू होने योग्य अधिकार, एक्सप्लिसिट एनफोर्सेबल राइट प्रदान करता है। यह अधिनियम गतिविधियां, एक्टिविटीज चलाता है जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस और भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बढ़ावा देने के लिए हैं। रिमूविंग बैरियर्स टू इंफॉर्मेशन एक्सेस, access to information, entry to means of production and distribution, and the right to present different viewpoints are as essential to democracy as they are to free media. सूचना तक पहुंच, access to information, उत्पादन और वितरण के साधनों, means of production and distribution, में प्रवेश और विभिन्न दृष्टिकोण, viewpoints, प्रस्तुत करने का अधिकार लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और स्वतंत्र मीडिया, फ्री मीडिया, दोनों के लिए उतना ही आवश्यक है। Some of these barriers will be removed or reduced as soon as the laws are seen to work and exemplary punishments are awarded. More subtle issues will need to be addressed in cases where there is sufficient respect for freedom of the press and expression. However, many times media fails to address or ignores several issues significant to our lives. The problem of drinking water is a major problem in our country. इन बाधाओं, barriers,
को तब तक हटाया या कम किया जाएगा जब तक कानून लॉज प्रभावी रूप से काम करते हुए दिखाए नहीं जाते और उदाहरणात्मक दंड एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। हालांकि कुछ अधिक सूक्ष्म सटल मुद्दों को संबोधित एड्रेस करने की आवश्यकता होगी, जहां प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड एक्सप्रेशन का सम्मान रिस्पेक्ट पर्याप्त है। हालांकि कई बार मीडिया उन मुद्दों को संबोधित एड्रेस करने में फेल हो जाता है या हमारे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों सिग्निफिकेंट इश्यूज की अनदेखी इग्नोर कर देता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में पीने के पानी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या एक बड़ा मेजर मुद्दा है, जिसे मीडिया अक्सर नजरअंदाज ओवरलुक करता है। केस स्टडी मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS चैंपियन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इन रूरल राजस्थान। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ग्रामीण राजस्थान में सूचना के अधिकार का मजदूर किसान शक्ति संगठन इज अ ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1990 in rural Rajasthan. Its main aim was to change the lives of poor people in rural areas through struggle and constructive programs. It has taken up to core issues of the landless peasants, redistribution of land and granting of minimum wages. मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ग्रासरूट संगठन है जिसे 1990 में ग्रामीण राजस्थान रूरल राजस्थान में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मेन एम ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के जीवन को संघर्ष स्ट्रगल और रचनात्मक कार्यक्रमों कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के माध्यम से बदलना था। इस संगठन ने दो मुख्य मुद्दों कोर इश्यूज को उठाया है। भूमिहीन किसानों लैंडलेस पीजेंट्स के लिए भूमि का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस की गारंटी ग्रांटिंग देना। इन राजस्थान ड्राउट्स आर कॉमन। ड्यूरिंग अ ड्राउट the people either migrate or work at the famine relief work sites. This could be building road, digging a well, or desilting ponds, lakes, etc. The laborers at the famine relief sites were not paid their full minimum wage. When they demanded to be paid minimum wages on public works. राजस्थान में सूखा ड्राउट्स सामान्य है। सूखा पड़ने पर लोग या तो पलायन माइग्रेट कर जाते हैं या फिर अकाल राहत कार्यस्थलों फमाइन रिलीफ वर्क साइट्स पर काम करते हैं। इस काम में सड़कें बनाना, कुएं खोदना या तालाबों और झीलों की सफाई डीसिल्टिंग पॉन्ड्स लेक्स शामिल होता है। इन राहत कार्यस्थलों पर श्रमिकों लेबरर्स को उनका पूरा न्यूनतम वेतन फुल मिनिमम वेज नहीं दिया गया था। जब उन्होंने सार्वजनिक कार्यों पर न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस की मांग की तो उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया गया कि उन्होंने काम नहीं किया। They were refused that the grounds that they did not work. The laborers questioned this response, but the officials replied that the records could prove that they did not work. The records in question were measurement books, which were filled by the junior engineer. The laborers then demanded to see the records. But they were told by the administrators that they could not see the records because according to the Official Secrets Act, 1923, श्रमिकों ने इस जवाब पर सवाल उठाया, लेकिन अधिकारियों ऑफिशियल्स ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड्स यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया।
यह रिकॉर्ड माप पुस्तकों मेजरमेंट बुक्स में थे, जिन्हें जूनियर इंजीनियर द्वारा भरा गया था। श्रमिकों ने तब इन रिकॉर्ड्स को देखने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें यह कहकर रिकॉर्ड देखने से मना कर दिया कि इन रिकॉर्ड्स को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत राज्य के गुप्त स्टेट सीक्रेट्स के रूप में रखा गया था। All these records were state secrets. This infuriated the laborers, who resolved to get access to those records. It was at this point of time that the movement for the right to information began. यह श्रमिकों को बहुत गुस्सा दिला गया और उन्होंने इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसी समय सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन मूवमेंट की शुरुआत हुई। The people identified totally with the cause. For them it was a battle for their survival. The struggle illustrated that the right to information was not just a component of people's right to freedom of speech and expression, art, 19, but was also a part of their fundamental rights under Article 21 of the Indian Constitution, the right to life and liberty. लोग पूरी तरह से इस कारण से जुड़ गए। उनके लिए यह उनके अस्तित्व सर्वाइवल की लड़ाई बैटल थी। इस संघर्ष स्ट्रगल ने यह दिखाया कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन केवल लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 8(19) का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मूलभूत अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का भी हिस्सा था। जीवन लाइफ और स्वतंत्रता लिबर्टी का अधिकार। The villagers made a large section of enlightened opinion to understand the necessity of access to records of government. From that struggle arose a number of slogans that have been used by the MKSS in its various phases of agitation. Slogans such as, our money, our account, the right to know, the right to life, this government belongs to you and me, it's no one's personal property. गांव वासियों ने एक बड़ी संख्या में प्रबुद्ध, एनलाइटेंड, राय, ओपिनियन बनाई जो सरकारी रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक पहुंच की आवश्यकता नेसेसिटी को समझते थे। इस संघर्ष से कई नारे स्लोगन्स उभरे जो एमकेएसएस के विभिन्न आंदोलनों एजिटेशंस के दौरान उपयोग किए गए। ये नारे थे, हमारा पैसा, हमारा खाता, आर मनी, आर अकाउंट, जानने का अधिकार, जीने का अधिकार, दी राइट टू नो, दी राइट टू लाइव। यह सरकार तुम्हारी और मेरी है, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दिस गवर्नमेंट बिलोंग्स टू यू एंड मी, इट्स नो वंस पर्सनल प्रॉपर्टी। टू अचीव दीज गोल्स, दी MKSS organized sit-ins, rallies, as well as lobbying with government. Cultural and innovative ways in communicating the ideas were also used through music, puppets, street theatre, etc. When the initial phase of agitation began with a sit-in, the government of Rajasthan reluctantly passed an order giving the people the right to inspect records and get certified photocopies. While inspecting the records of a village council, the MKSS found a great deal of irregularities and malpractices. From this emerged the techniques of the public hearing, which has been used as a tool in unearthing many scams in development projects. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए MKSS ने धरने, सिट-इन्स, रैलियां, रैलीज और सरकार के साथ लॉबिंग आयोजित की। विचारों, आइडियाज
को संप्रेषित कम्युनिकेट करने के लिए सांस्कृतिक और अभिनव इनोवेटिव तरीकों का भी उपयोग किया गया, जैसे संगीत, म्यूजिक, कठपुतलियां, पपेट्स, सड़क नाटक, स्ट्रीट थिएटर आदि। जब इस आंदोलन का प्रारंभिक चरण इनिशियल फेज धरने के साथ शुरू हुआ, तो राजस्थान सरकार ने मजबूरी में एक आदेश ऑर्डर पारित किया, जिसके तहत लोगों को रिकॉर्ड्स की जांच करने और प्रमाणित फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार राइट दिया गया। गांव परिषद विलेज काउंसिल के रिकॉर्ड्स की जांच करते हुए एमकेएसएस ने कई अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज और गलत प्रथाएं मैल प्रैक्टिसेस पाई। इसके बाद लोक सुनवाई पब्लिक हियरिंग की टेक्निक्स उभरी, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कई घोटालों स्कैम्स को उजागर अनर्थ करने के लिए किया गया। Usually, in a public hearing, the MKSS first obtains the records pertaining to the public works carried out by the village council in the last 5 years. Once the documents are accessed, the Sangathan takes the records to each village where the work is said to have been executed, and then testimonies are sought from the villagers and the laborers who were employed on the site. The MKKS also does site verifications with the laborers and villagers. On the day of the public hearing in front of the General Assembly of the villagers, the details are read out and testimonies sought. A panel of experts from various fields is invited to the public hearing, including lawyers, journalists, academicians and government officials. The panel is also allowed to cross-examine and ask for clarifications. The malpractices usually uncovered are purchase overbilling, sale overbilling, fake labor roles, underpayment of wages and fake works. आम तौर पर एक लोक सुनवाई पब्लिक हियरिंग में एमकेएसएस सबसे पहले पिछले 5 वर्षों में गांव परिषद द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों पब्लिक वर्क्स से संबंधित रिकॉर्ड्स प्राप्त करता है। एक बार जब दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हासिल हो जाते हैं, तो संगठन उन रिकॉर्ड्स को प्रत्येक गांव में ले जाता है जहां यह काम किया गया बताया गया है, और फिर गांववासियों विलेजर्स और श्रमिकों लेबरर्स से गवाही टेस्टिमोनीज ली जाती है जो साइट पर कार्यरत थे। एमकेएसएस श्रमिकों और गांववासियों के साथ स्थल सत्यापन साइट वेरिफिकेशंस भी करता है। लोक सुनवाई के दिन गांववासियों की आम सभा जनरल असेंबली के सामने रिकॉर्ड्स की जानकारी डिटेल्स पढ़ी जाती है और गवाहियां ली जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स का एक पैनल लोक सुनवाई में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें वकील लॉयर्स पत्रकार जर्नलिस्ट्स एकेडमिशियंस और सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। पैनल को क्रॉस एग्जामिन करने और स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशंस पूछने की अनुमति भी होती है। जो गलत प्रथाएं मैल प्रैक्टिसेस आम तौर पर सामने आती हैं, उनमें शामिल हैं खरीद की अधिक बिलिंग परचेज ओवर बिलिंग, बेचने की अधिक बिलिंग सेल ओवर बिलिंग, फर्जी श्रमिक सूची फेक लेबर रोल्स, वेतन में कमी अंडरपेमेंट ऑफ वेजेस, फर्जी काम फेक वर्क्स। In most cases, the public hearing causes rapid escalation in payments. People who have not been paid for years, who have been denied payment despite repeated visits to the Sarpanch, find themselves being paid overnight. Many times, the Sarpanch himself comes to the laborer and pays him,
thereby obviating the need for him or her to go and testify at the public hearing. There have also been causes where after the public hearing and an embezzlement being proved, the Sarpanch has indeed paid back the amount into the Panchayat exchequer. Action has been initiated against officials who have been involved in embezzlement. अधिकांश मामलों में लोक सुनवाई पब्लिक हियरिंग के बाद भुगतान पेमेंट्स में तेजी से वृद्धि एस्केलेशन देखी जाती है। जो लोग सालों से नहीं पेड गए थे, जो सरपंच के पास बार बार जाने के बावजूद भुगतान से वंचित थे, वे रातों रात भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। कई बार सरपंच स्वयं श्रमिक लेबरर के पास आता है और उसे भुगतान पे करता है, जिससे उसे लोक सुनवाई पब्लिक हियरिंग में जाकर गवाही देने टेस्टिफाई की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मामलों में लोक सुनवाई के बाद और गबन एम्बेजलमेंट साबित होने के बाद सरपंच ने वास्तव में राशि अमाउंट पंचायत को वापस जमा पेड बैक इनटू दी पंचायत एक्सचेकर कर दी है। उन अधिकारियों ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई एक्शन शुरू की गई है जो गबन एम्बेजलमेंट में शामिल थे। टू एडवर्टाइजिंग Advertising refers to the promotion of goods, services, companies and ideas through a medium, usually by an identified sponsor or agent. There are different ways of attracting public attention and conveying the message. The different methods of advertising are discussed in the following order. विज्ञापन advertising का मतलब है सामानों, goods, सेवाओं, सर्विसेज, कंपनियों, कंपनीज और विचारों, आइडियाज का प्रचार, प्रमोशन, एक माध्यम, मीडियम के जरिए जो आमतौर पर एक पहचाने गए प्रायोजक, स्पॉन्सर या एजेंट द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने, अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन और संदेश, मैसेज को संप्रेषित, कन्वे करने के विभिन्न तरीके, मेथड्स होते हैं। विज्ञापन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित क्रम में चर्चा किए गए हैं। इंडोर एडवर्टाइजिंग, एक प्रेस पब्लिसिटी। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी. It has become very effective due to growth of literacy and spread of printing technology. The different forms of indoor advertising are newspapers, magazines, journals and business publications. यह सार्वजनिकता का सबसे सस्ता, cheapest और सबसे सामान्य, most common रूप है। यह बहुत प्रभावी, effective हो गया है क्योंकि साक्षरता, लिटरेसी का विकास और मुद्रण तकनीकी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ है। इंडोर विज्ञापन, इंडोर एडवर्टाइजिंग के विभिन्न रूपों में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, जर्नल्स और व्यापारिक प्रकाशन, बिजनेस पब्लिकेशंस शामिल हैं। Newspapers. There are several types of newspapers such as daily, weekly, morning, evening, regional or national, in English, Hindi and local languages. Because of their reach, advertisers find them an effective device for passing important announcements and informing the public customers about various matters. In selecting a newspaper, the advertiser must consider extent of circulation, time of issue, leadership, language of publication, editorial policy, etc. समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे दैनिक, डेली, साप्ताहिक, वीकली, सुबह, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, क्षेत्रीय, रीजनल या राष्ट्रीय, नेशनल।
ये अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं, लोकल लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। इनकी पहुंच, रीच के कारण विज्ञापनदाता, एडवर्टाइजर्स इन्हें महत्वपूर्ण घोषणाएं, अनाउंसमेंट्स करने और सार्वजनिक ग्राहकों, पब्लिक कस्टमर्स को विभिन्न मामलों के बारे में सूचित, इन्फॉर्म करने का एक प्रभावी उपकरण, इफेक्टिव डिवाइस मानते हैं। जब कोई विज्ञापनदाता एक समाचार पत्र का चयन, सिलेक्ट करता है, तो उसे निम्नलिखित पहलुओं, एस्पेक्ट्स पर विचार करना होता है। वितरण का क्षेत्र, एक्सटेंट ऑफ सर्कुलेशन, प्रकाशन का समय, टाइम ऑफ इशू, नेतृत्व, लीडरशिप, प्रकाशन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन, संपादकीय नीति, एडिटोरियल पॉलिसी। 2. Magazines and journals. Magazines offer selective reading and have a longer life than newspapers. Otherwise known as periodicals, these provide information as well as relaxation to consumers during their leisure time. The range of articles is limitless and may include short stories, fiction, literature, fun, sports, films, astrology, medicine, or politics. Besides these, there are trade journals, business publications, house organs, and professional magazines. They can be classified into bi-weekly, weekly, fortnightly, quarterly or monthly, general or special readership, and magazines for women, youth, children or adults, and finally, pocket books ranging from standard to large size. पत्रिकाएं, मैगजीन्स, चयनात्मक पढ़ाई, सिलेक्टिव रीडिंग प्रदान करती हैं और समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स से अधिक समय तक चलने वाली लॉन्गर लाइफ होती हैं। इन्हें सामान्यतः पीरियोडिकल्स कहा जाता है, जो उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स को न केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन, बल्कि उनके अवकाश, लीजर टाइम के दौरान विश्राम, रिलैक्सेशन भी प्रदान करती हैं। पत्रिकाओं में लेखों, आर्टिकल्स की रेंज अनंत, लिमिटलेस होती है और इनमें लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज, उपन्यास, फिक्शन, साहित्य, लिटरेचर, मनोरंजन, फन, खेल, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा, मेडिसिन, राजनीति, पॉलिटिक्स आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा व्यापार जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स, व्यावसायिक प्रकाशन, बिजनेस पब्लिकेशंस, हाउस ऑर्गन्स और पेशेवर पत्रिकाएं, प्रोफेशनल मैगजीन्स भी शामिल हैं। इन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत, क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे द्विसाप्ताहिक, बाईवीकली, साप्ताहिक, वीकली, पखवाड़ा, फोर्टनाइटली, त्रैमासिक, क्वार्टरली या मासिक, मंथली पत्रिकाएं। सामान्य या विशेष पाठक वर्ग, जनरल और स्पेशल रीडरशिप। महिलाओं, युवाओं, बच्चों या वयस्कों, विमेन, यूथ, चिल्ड्रन, अडल्ट्स के लिए पत्रिकाएं। छोटे से लेकर बड़े आकार तक, पॉकेट बुक्स रेंजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड टू लार्ज साइज। 2. Broadcast, audiovisual, publicity. Such messages directly impact our ears and eyes. Commercial advertisements are often slipped into TV programs, music serials or films to provide infotainment, a new category of audiovisual medium that informs and entertains. A large number of products are advertised through this method, using radio, फिल्म, टीवी एंड वीडियो। ऐसे संदेश, मैसेजेस सीधे हमारे कानों, ईयर्स और आँखों, आईज पर असर डालते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन,
कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर टीवी कार्यक्रमों, टीवी प्रोग्राम्स, संगीत धारावाहिकों, म्यूजिक सीरियल्स या फिल्म्स में डाले जाते हैं ताकि इंफोटेनमेंट एक नया ऑडियोविजुअल मीडियम प्रदान किया जा सके जो सूचना, इंफॉर्मेशन और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट दोनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन करता है। इस पद्धति मेथड का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में उत्पादों, प्रोडक्ट्स का विज्ञापन किया जाता है जो रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, टीवी और वीडियो के माध्यम से प्रसारित ब्रॉडकास्ट होते हैं। बी. आउटडोर एडवर्टाइजिंग. Outdoor advertising is more institutional than product-oriented in nature. The primary objective is to catch the eye of persons on the move. Brief but punchy messages are displayed at strategic areas like walls, street corners, traffic centers and highways, for instant effect and wide exposure. Outdoor advertising can be done through posters, billboards, banners, subways, sandwich men, clowns, electric and neon signs, field signs, vehicles, blimps, kiosks on electricity poles, umbrellas and stickers. आउटडोर विज्ञापन, आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्वभाव से उत्पाद केंद्रित, प्रोडक्ट ओरिएंटेड की तुलना में अधिक संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यह है कि चलते फिरते लोग, पर्सन्स ऑन दी मूव, इसका ध्यान आकर्षित करें, कैच दी आई। संक्षिप्त, ब्रीफ लेकिन प्रभावशाली, पंची संदेश, मैसेजेस ऐसे रणनीतिक स्थानों, स्ट्रैटेजिक एरियाज पर प्रदर्शित, डिस्प्लेड किए जाते हैं, जैसे दीवारें, वॉल्स, सड़क के कोने, स्ट्रीट कॉर्नर्स, यातायात केंद्र, ट्रैफिक सेंटर्स और राजमार्ग, हाईवेज, ताकि त्वरित प्रभाव, इंस्टेंट इफेक्ट और व्यापक पहुंच, वाइड एक्सपोजर प्राप्त हो सके। आउटडोर विज्ञापन निम्नलिखित तरीकों, मेथड्स से किया जा सकता है। पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, बैनर्स, सबवेज, सैंडविच लोग, सैंडविच मैन, जोकर, क्लाउन्स। इलेक्ट्रिक एंड नियॉन साइंस, मैदान के साइन, फील्ड साइंस। वाहन, व्हीकल्स, ब्लिम्प्स, कायोस्क्स, बिजली के खंभों पर, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। छतरियां, अम्ब्रेलास और स्टिकर्स। सी. डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. Direct advertising is aimed at reaching consumers without the need of an intermediary to establish connection. It is done by sending printed messages by mail, through retail outlets, distributed on thoroughfares, enclosed in packages or delivered door to door. The purpose is primarily to build goodwill by selling the name of the institution more than the products. Here the appeal is direct but impersonal. It is important to identify the target audience, i.e., those individuals to whom the message should be sent, the manner of communication and preparation as well as updating of mailing list. Supplied free of cost, they provide ample information, explain details and use impressive persuasive presentation. The forms of direct publicity are as follows. डायरेक्ट विज्ञापन, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स तक पहुंचने का है, बिना किसी मध्यस्थ, इंटरमीडियरी की आवश्यकता के, ताकि एक सीधा संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित किया जा सके। यह आम तौर पर मुद्रित संदेश, प्रिंटेड मैसेजेस,
भेजने द्वारा किया जाता है, जैसे मेल के माध्यम से, खुदरा आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स के द्वारा मुख्य सड़कों, थॉरोफेयर्स पर वितरित किया जाता है। पैकेजों में संलग्न, एंक्लोज्ड किया जाता है या दरवाजे डोर टू डोर वितरित किया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से संस्था, इंस्टीट्यूशन के नाम को बेचना, सेल न कि केवल उत्पादों, प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर अपील सीधे होती है, लेकिन यह व्यक्तिगत, इम्पर्सनल नहीं होती। यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य श्रेणी, टारगेट ऑडियंस को पहचाना जाए, यानी उन व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स को जिन्हें संदेश भेजा जाना चाहिए। संचार का तरीका, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन और मेलिंग सूची, मेलिंग लिस्ट का अद्यतन, अपडेटिंग किया जाए। सर्कुलर्स, विक्रय पत्र, सेल्स लेटर्स, पर्चे, लीफलेट्स, फोल्डर्स, बुकलेट्स, कैटलॉग और मूल्य सूची, कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट, ब्रोशर, स्टफर, ब्रॉडसाइड, हाउस ऑर्गन, पोस्टेज फ्री बिजनेस रिप्लाई कार्ड, शुल्क नमूने, फ्री सैंपल्स, छूट कूपन, डिस्काउंट कूपन्स, डीलर सहायता, डीलर एड्स, पैकेज इंसर्ट्स, डेट कार्ड, कैलेंडर डायरीज, display advertising. It is also known as point of purchase, POP, or promotional advertising. Its main objective is to impact the customers at the point of purchase itself, allowing them to see and examine the articles. This is not possible in other types of publicity. There is much creativity involved in making attractive and orderly arrangement of POP products, since these can often trigger impulse buying. A good display, whether in a show window or on floor, extends silent but warm invitation to enter a shop and examine the features and services related to goods exhibited. Types of display may be categorized as follows. डिस्प्ले विज्ञापन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को पॉइंट ऑफ परचेज, पॉप या प्रमोशनल विज्ञापन, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, ग्राहकों, कस्टमर्स पर प्रभाव डालना है, खरीदारी के स्थान, पॉइंट ऑफ परचेज पर ही, जिससे उन्हें उत्पादों, आर्टिकल्स को देखने और परीक्षा, एग्जामिन करने का अवसर मिल सके। यह अन्य प्रकार के प्रचार, पब्लिसिटी में संभव नहीं होता। इसमें बहुत रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जुड़ी होती है, क्योंकि पॉप उत्पादों, पॉप प्रोडक्ट्स की आकर्षक और व्यवस्थित, ऑर्डरली व्यवस्था, अरेंजमेंट करनी होती है, क्योंकि ये अक्सर इंस्टेंट खरीदी, इम्पल्स बाइंग को प्रेरित कर सकते हैं। एक अच्छा डिस्प्ले, चाहे वह शो विंडो में हो या दुकान के अंदर, ऑन फ्लोर, ग्राहकों को चुपचाप, साइलेंट लेकिन गर्मजोशी से, वार्म, दुकान में प्रवेश करने और प्रदर्शित किए गए सामान, गुड्स की विशेषताएं और सेवाएं, फीचर्स एंड सर्विसेज देखने का निमंत्रण, इनविटेशन देता है। डिस्प्ले विज्ञापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत, कैटेगराइज्ड किए जा सकते हैं। इंटीरियर काउंटर डिस्प्ले, इंटीरियर काउंटर डिस्प्ले, एक्सटीरियर डिस्प्ले, शोरूम, शोकेस और शो विंडो, शोरूम,
showcase and show window. 4 exhibitions and trade fairs. 5 product launches. We already know that media is the plural form of the word medium. Medium means channel through which a concept is delivered. As a medium, therefore, advertising is a means of delivering sales message. It is a means of passing relevant information to customers. Every producer wants to be in touch with old consumers as well as to attract the new ones. Advertising does precisely this. It bridges the gap between the products and their customers. There are a number of media open for the advertiser to select. While selecting the proper medium of advertisement, the facts of economy and effect of publicity should be taken into consideration. An advertisement may appear anywhere, from a newspaper or even calendar. हम पहले ही जानते हैं कि मीडिया शब्द का बहुवचन रूप है और मीडियम का मतलब होता है एक चैनल जिसके माध्यम से एक विचार कॉन्सेप्ट पहुंचाया जाता है। इसलिए विज्ञापन एडवर्टाइजिंग भी एक मीडियम है जो बिक्री संदेश सेल्स मैसेज पहुंचाने का एक तरीका है। यह ग्राहकों कस्टमर्स को संबंधित जानकारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने का एक माध्यम है। हर उत्पादक प्रोड्यूसर चाहता है कि वह पुराने ग्राहकों ओल्ड कंज्यूमर्स से जुड़ा रहे और नए ग्राहकों न्यू कंज्यूमर्स को आकर्षित अट्रैक्ट करे। विज्ञापन ठीक यही काम करता है। यह उत्पादों प्रोडक्ट्स और उनके ग्राहकों कस्टमर्स के बीच की दूरी गैप को पाटता है। विज्ञापनदाता एडवर्टाइजर के पास कई तरह के मीडिया होते हैं जिनमें से वह उचित मीडियम का चयन सिलेक्ट कर सकता है। विज्ञापन का सही मीडियम प्रॉपर मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट चुनते समय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी और प्रचार के प्रभाव इफेक्ट ऑफ पब्लिसिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विज्ञापन कहीं भी प्रकाशित हो सकता है, जैसे समाचार पत्र न्यूज़पेपर या कैलेंडर में भी। सोसाइटी एंड एडवर्टाइजिंग। Advertising is business as well as a social process. No one in society can quite escape from its reach. Its effects are felt at conscious as well as subconscious levels. Whether it actually benefits society or not is debatable. In general, its benefits may be considered as under. विज्ञापन, advertising, व्यापार, business और सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस दोनों है। समाज में कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं सकता। एस्केप। इसके प्रभाव इफेक्ट्स हमारे संचेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस दोनों स्तरों लेवल्स पर महसूस होते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में समाज सोसाइटी के लिए लाभकारी है या नहीं, लेकिन यह एक बहस डिबेटेबल का विषय है। सामान्यतः इसके लाभ बेनिफिट्स को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। It creates awareness about living standards. Though advertising educates the masses about the possibilities of better lifestyles, it can also be a destructive force since it can arouse resentment about the existing standard of living. The standard of living depends on the national income and its distribution on one hand, whereas the consumption pattern depends on the disposable income. Where incomes are low and the majority products and services are aimed at the affluent sections of society, it can persuade people to overspend and ruin their financial stability.
Credit cards are infamous for doing this. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, जनमानस, मासेस को बेहतर जीवन शैली, बेटर लाइफस्टाइल्स के अवसरों, पॉसिबिलिटीज के बारे में जागरूक, एजुकेट्स करता है, लेकिन यह एक विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव ताकत भी बन सकता है, क्योंकि यह मौजूदा जीवन स्तर, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में असंतोष, रिजेंटमेंट उत्पन्न कर सकता है। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और उसकी वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, जबकि उपभोग का पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न, डिस्पोजेबल आय, डिस्पोजेबल इनकम पर आधारित होता है। जहां आय, इनकम कम होती है और अधिकांश उत्पाद, प्रोडक्ट्स और सेवाएं, सर्विसेज, संपन्न, एफ्लुएंट समाज के वर्गों, सेक्शंस को लक्षित, एम्ड करती है, वहां यह लोगों को अत्यधिक खर्च, ओवरस्पेंड करने और उनकी वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नष्ट, रुइन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इस प्रकार के व्यवहार के लिए कुख्यात, इन्फेमस है। 2. It can adversely affect the public psyche. While it can raise production, reduce prices of goods, and increase employment and income levels, the incessant bombardment of advertisements relating to high-end consumer products can also generate deep, simmering resentment in a poor society like India's. At quite another level, rampant materialism can erode traditional value systems and corrode one's feeling of self-worth. Hence, growing materialism, erosion of values, and rise in criminal activities tend to show close correlation. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, उत्पादन, प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, वस्तुओं, गुड्स की कीमतों को घटा सकता है और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और आय, इनकम के स्तरों को बढ़ा सकता है। लेकिन उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता उत्पादों, हाई एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से संबंधित विज्ञापनों, एडवर्टाइजमेंट्स का निरंतर बमबारी, इंसेसेंट बॉम्बार्डमेंट एक गरीब समाज, पुअर सोसाइटी जैसे भारत में गहरी और सुलगती नफरत, रिजेंटमेंट उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा व्यापक भौतिकवाद, रैम्पेंट मटेरियलिज्म, पारंपरिक मूल्य प्रणालियों, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स को नष्ट, इरोड कर सकता है और किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को नुकसान, कोरोड पहुंचा सकता है। इस प्रकार बढ़ता भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, मूल्यों का क्षरण, एरोशन ऑफ वैल्यूज और अपराध गतिविधियों, क्रिमिनल एक्टिविटीज में वृद्धि एक करीबी संबंध, क्लोज कोरिलेशन दिखाते हैं। 3. It generates employment opportunities. Advertising is capable of generating employment opportunities directly and indirectly for those who are talented and courageous. Direct employment opportunities are aplenty in the ever-growing field of advertising. It is a highly specialized and challenging area, requiring the combined talents of artists, painters, photographers, content writers, singers, composers, musicians, carpenters, pressmen, actors and actresses, technicians, travel agents, location scouts and financial executives. These people handle these delicate tasks meticulously. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग उन लोगों के लिए सीधे और परोक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न करने में सक्षम है, जो प्रतिभाशाली, टैलेंटेड और साहसी, करेजियस होते हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निरंतर बढ़ रहे हैं, एवर ग्रोइंग फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग।
यह एक अत्यधिक विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण, स्पेशलाइज्ड एंड चैलेंजिंग क्षेत्र है जो कलाकारों, आर्टिस्ट्स, चित्रकारों, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, सामग्री लेखकों, कंटेंट राइटर्स, गायकों, सिंगर्स, संगीतकारों, कंपोजर्स, संगीतज्ञों, म्यूजिशियंस, बढ़ी, कारपेंटर्स, प्रेस के कर्मचारियों, प्रेसमैन, अभिनेता और अभिनेत्री, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तकनीशियनों, टेक्नीशियंस, ट्रैवल एजेंट्स, स्थान खोजने वालों, लोकेशन स्काउट्स और वित्तीय अधिकारियों, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स जैसे कई पेशेवरों, प्रोफेशनल्स की संयुक्त प्रतिभा, कंबाइंड टैलेंट्स की आवश्यकता होती है। यह लोग इन नाजुक कार्यों, डेलिकेट टास्क्स को बड़ी सावधानी, मेटिकुलसली से संभालते हैं। Indirectly, it has generated employment by supporting industries that supply the inputs such as paper, paints, cloth, colors and dyes, energy, electronic gadgets, plastic, steel and other metal and non-metal industries. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, परोक्ष रूप से उन उद्योगों, इंडस्ट्रीज को समर्थन, सपोर्ट देकर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न करता है जो आवश्यक सामग्री, इनपुट्स प्रदान करते हैं, जैसे कागज, पेपर, रंग, पेन्स, कपड़ा, क्लॉथ, रंगीन रंग, कलर्स एंड डाइस, ऊर्जा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्लास्टिक, स्टील और अन्य धातु और गैर धातु उद्योग, मेटल एंड नॉन मेटल इंडस्ट्रीज। 4. It opens new vistas of knowledge. Advertising can be a great educator. Every advertiser has something unique to share with the society at large. It can also be a great facilitator. Prospective employers and their ideal candidates can connect. Matrimonial ads bring brides and bridegrooms together. Some announce the arrival of baby, while others announce the departure of the old, and producers speak of the products, services or ideas they wish people to buy. Each advertisement is a chunk of information and has an underlying theme. To convey the central idea, the advertisement copy tells story, gives statistical data, narrates an incident, and uses enchanting illustrations of places that we would have otherwise never heard of. An advertisement uses personal emotion to grab the attention of the public. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, एक महान शिक्षक, ग्रेट एजुकेटर हो सकता है। प्रत्येक विज्ञापनदाता, एडवर्टाइजर के पास समाज, सोसाइटी के लिए कुछ विशेष, यूनिक साझा करने के लिए होता है। यह एक महान सहायक, फैसिलिटेटर भी हो सकता है। संभावित नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स और उनके आदर्श उम्मीदवार, आइडियल कैंडिडेट्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। विवाह विज्ञापन, मैट्रिमोनियल एड्स, दुल्हन और दूल्हे, ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स को एक साथ लाते हैं। कुछ बच्चों के आगमन, अराइवल ऑफ बेबी की घोषणा, अनाउंस करते हैं, जबकि अन्य वृद्धों के निधन, डिपार्चर ऑफ द ओल्ड की सूचना देते हैं, और निर्माता, प्रोड्यूसर्स उन उत्पादों, प्रोडक्ट्स, सेवाओं, सर्विसेज या विचारों, आइडियाज का प्रचार करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं कि लोग खरीदें, बाय। प्रत्येक विज्ञापन एक सूचना का टुकड़ा, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और इसके पीछे एक अंतर्निहित विषय, अंडरलाइंग थीम होता है। केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया को व्यक्त करने, कन्वे के लिए विज्ञापन की सामग्री, एडवर्टाइजमेंट कॉपी एक कहानी, स्टोरी सुनाती है, सांख्यिकीय आंकड़े, स्टैटिस्टिकल डेटा देती है, एक घटना,
इंसिडेंट का वर्णन नैरेट्स करती है और उन स्थानों प्लेसेस की आकर्षक एन्चांटिंग चित्रण इलस्ट्रेशंस का उपयोग करती है जिनके बारे में हम अन्यथा कभी नहीं सुन पाते। एक विज्ञापन व्यक्तिगत भावनाओं पर्सनल इमोशन का उपयोग करता है ताकि वह सार्वजनिक का ध्यान आकर्षित ग्रैब दी अटेंशन कर सके। It should relate to the culture of a nation. Culture is a man-made environment in which we live along with others. It reflects our values of life. These values are subject to change and are driven by changes in social, political, economic and ethical arena, though not all of which are good or desirable. The cultural function of advertising is to understand and reflect the value structure of the society within which it operates. Advertising within the limits set by a culture has the potential to create new expectations and aspirations in the minds of consumers. Thus, an advertisement uses personal emotion to promote its own ends. संस्कृति, culture, वह मानव निर्मित वातावरण, man-made environment, है जिसमें हम अन्य लोगों के साथ रहते हैं। यह हमारे जीवन के मूल्यों वैल्यूज ऑफ लाइफ को दर्शाता है। ये मूल्य वैल्यूज समय के साथ बदल सकते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एथिकल परिवर्तनों चेंजेस से प्रेरित होते हैं। हालांकि इनमें से सभी परिवर्तन अच्छे या वांछनीय डिजायरेबल नहीं होते। विज्ञापन का सांस्कृतिक कार्य कल्चरल फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग समाज के मूल्य संरचना वैल्यू स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को समझना और उसे प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करना है जिस समाज सोसाइटी में वह काम करता है। एक संस्कृति द्वारा निर्धारित सीमाओं लिमिट्स सेट बाय कल्चर के भीतर विज्ञापन एडवर्टाइजिंग समाज के मनोभावों माइंडसेट्स में नई अपेक्षाएं न्यू एक्सपेक्टेशंस और आकांक्षाएं एस्पिरेशंस उत्पन्न करने की क्षमता पोटेंशियल रखता है। इसलिए एक विज्ञापन व्यक्तिगत भावनाओं पर्सनल इमोशन का उपयोग करता है ताकि वह अपने लक्ष्यों एंड्स को बढ़ावा प्रोमोट दे सके। The concept of social advertising is no longer new. In social advertising, government, NGOs and even celebrities join hands to spread the social message among the people. Amitabh Bachchan has been constantly spreading the message of polio vaccination. These messages are generally used to make the masses aware of health and moral issues. सामाजिक विज्ञापन सोशल एडवर्टाइजिंग का विचार अब नया नहीं रहा। सामाजिक विज्ञापन में सरकार, गवर्नमेंट, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और यहाँ तक कि हस्तियां, सेलिब्रिटीज भी सामाजिक संदेश, सोशल मैसेज फैलाने के लिए एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन लगातार पोलियो वैक्सीनेशन के संदेश को फैलाते रहे हैं। ये संदेश आमतौर पर स्वास्थ्य, हेल्थ और नैतिक मुद्दों मॉरल इश्यूज के प्रति जन जागरूकता अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए होते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। दिस इज द एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म। In a modern capitalistic society, the consumer is king. Knowledge of consumer rights, which promote protection of consumers, is called consumer awareness. Millions of products are churned out to cater to the preference of consumers. Markets are full of domestic goods as well as foreign commodities. This promotes free trade, a globalized economy and cross-border amity.
A lot of money is being spent by producers or marketing companies on advertisements. Advertisements inform people about new products on the market shelves in order to create demand. यह उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म का युग एरा है। एक आधुनिक पूंजीवादी समाज, मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में उपभोक्ता, कंज्यूमर, राजा, किंग होता है। उपभोक्ता के अधिकारों, कंज्यूमर राइट्स के बारे में ज्ञान, जो उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स के संरक्षण, प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है, उसे उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस कहा जाता है। लाखों उत्पाद, प्रोडक्ट्स, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं, प्रेफरेंसेस को पूरा करने के लिए तैयार, चर्नड आउट किए जाते हैं। बाजार, मार्केट्स, घरेलू वस्तुओं, डोमेस्टिक गुड्स के साथ साथ विदेशी वस्त्रों, फॉरेन कमोडिटीज से भरे हुए हैं। यह मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी और सीमा पार मित्रता, क्रॉस बॉर्डर एमिटी को बढ़ावा देता है। उत्पादकों, प्रोड्यूसर्स या विपणन कंपनियों, मार्केटिंग कंपनीज द्वारा विज्ञापनों, एडवर्टाइजमेंट्स पर बहुत पैसा, मनी, खर्च, स्पेंड किया जा रहा है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को नए उत्पादों, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में सूचित, इन्फॉर्म करते हैं ताकि बाजार में मांग, डिमांड उत्पन्न, क्रिएट की जा सके।